Hello. Hello. So I hope I am audible to all of you. Very good morning to all of you. Thank you so much for joining. So now we are going to start our webinar. So my name is Stephanie Christian, and I am Business Development Executive at DroneLab Technologies. So we are going to start our webinar from today. We will be conducting this webinar every Saturday from 11 to 12 for 1 hour. So I hope we all will be learning something from this webinar. And thank you so much, all of you, for video is not clear. Okay. Just a second. Thank you so much. I will be starting from the introduction part. So, DroneLab Technologies was founded in 2016, and so हम लोग 3 sectors पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, and we are DroneLab is basically based on these 3 sectors: drone as a service, drone academy, and drone stores. And we are now included in drone manufacturing. So we are now going to start our webinar, and the mentors who will be participating in this webinar for today will be Reem Neriwala, who will be giving this taking this webinar in the lecture of introduction to remote sensing. इसमें concept of basic principles, electromagnetic radiations, scanning process of sensors, different platforms for remote sensing, application of remote sensing, ये सब इसमें included रहेगा. And yes, of course, our university partners are Mansarovar Global University, SVIT, Sardar Vallabhbhai Institute, GTU, Gujarat Technological University, Indus University, and NFSU, National Forensic Science University. So here I am going to now hand over to Chintan Parmar, who is our instructor. So yes, you can start over it. Thank you so much. Hello everyone, good morning. Today we are joined for the webinar as a drone data and remote sensing. So first of all, I'm a warm welcome to our mentor, Mr. Reem Neriwala. And first question to Mr. Reem Neriwala. सर जो ये ड्रोन डेटा और रिमोट सेंसिंग वो क्या है, वो आप हमें ब्रीफ में बता सकते हैं सर? जी चिंतन, थैंक यू. सो बेसिकली रिमोट सेंसिंग ड्रोन डेटा इज लाइक remote sensing is like acquiring the information about anything. Mithilesh, can you mute your mic? Okay, so acquiring data about anything which is distant from ourselves. Like the best example of remote sensing is human eye. Like we can see a building that is distant from us, that is far away from us, but we can get the information about the building. Okay, so building is of 10 stories, and what is the information about the building? सामने एक पेड़ है, तो वो किसका पेड़ है वो हम डिस्टेंस से देख सकते हैं. सो जस्ट लाइक आवर ह्यूमन आई, हम सैटेलाइट से भी देख सकते हैं कि व्हाट लाइक ग्राउंड पे क्या हो रहा है, लाइक व्हाट इज द चेंजेस ओवर द इयर्स. लाइक 5 years में सूरत सिटी और अहमदाबाद सिटी में अर्बन स्प्राउल, लाइक उसके पेरिफेरी में कितना डिफरेंस आ गया, कि अर्बन एक्सपेंशन कितना हो गया. ऑल दिस थिंग्स लाइक आर इंक्लूडेड इन रिमोट सेंसिंग. इट्स क्वाइट wide applications of remote sensing. So
रिमोट सेंसिंग से हम एग्रीकल्चर में भी काम कर सकते हैं, अर्बन प्लानिंग में भी काम कर सकते हैं, माइनिंग इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं. लाइक इट्स very wide applications of remote sensing. Thank you. Mr. Neriwala, Yes. if possible, you can turn on your camera, please, if possible. I just lost my like cam on. This is not inscribed in my Okay, laptop, so it's not No possible. problem, no problem, no problem. Thank you so much. Okay, I'll share my screen. So is it visible? My screen is visible to you guys? Yes. Okay, good. So welcome to this webinar series by Drone Lab Academy. And this will be the first webinar on remote sensing. So before like going into the webinar, I like to like जो हम जितने भी जुड़े हैं हमारी ऑडियंस क्या है उन लोग का बैकग्राउंड आई वुड लाइक टू गेट, ताकि लाइक लुक रिमोट सेंसिंग ऐसा नहीं है कि कोई एक फील्ड का बंदा या बंदी कर सकती है. Like if you are civil engineer, remote sensing is for you. If you are electronic or electrical engineer, remote sensing for you. So if you are mechanical engineer, even you can get into the remote sensing part. So just हम ना क्विकली हम बताएंगे कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम ड्रोन पायलट है, हम क्या कर रहे हैं, ताकि वेबिनार हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो मुझे किस डायरेक्शन में उसको लेके जाना है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी. सो जस्ट एक क्विक चैट बॉक्स में आप सभी डाल दीजिए कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं. सो इट विल बी लाइक बेनिफिशियल फॉर मी. Okay, great. So let me just move swiftly to the presentation and not taking much time of yours. So before starting the webinar, it will be like a two-way communication. So it will be, the session will be more engaging. It will keep you engaged throughout the webinar, and it will like just interaction will be more during the whole webinar. So the whole flow of webinar will be going from the history and development, that is the introduction of remote sensing, and covering all the basics to the advanced and the application of remote sensing. So we'll cover every topic one by one. Wherever you guys feel that something is missing or you have some doubt, you can just get into the chat box. I'll reply to me. Okay. So starting from the remote sensing, like अभी जैसे हमारा बात हुआ कि रिमोट सेंसिंग क्या है, तो किसी भी चीज को हम दूर से किसी भी चीज का उसको टच किए बिना अगर इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं तो उसे रिमोट सेंसिंग कहते हैं. और अगर उसका प्रॉपर डेफिनेशन में हम अगर जाएंगे तो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी सिमिलर टू मैथमेटिक्स यूजिंग सेंसर्स. लाइक डिफरेंट सेंसर्स है जिसके हम जैसे हम वेबिनार में आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंट सेंसर्स के बारे में भी हम जानेंगे कि क्या सेंसर किस उपयोग में आ सकता है, किस सेंसर में लाइक कैसे कैसे एप्लीकेशंस के लिए हम किस किस सेंसर्स का उपयोग कर सकते हैं. लाइक मैथमेटिक्स यूजिंग सेंसर्स टू मेजर द अमाउंट ऑफ electromagnetic energy and provide us the valuable data for the major analysis, enhancing the development of nation. Like अभी हम अगर हिस्ट्री में बात करेंगे तो रिमोट सेंसिंग इज लाइक मोर देन 60-70 years फिनोमिना, बट जैसे ही पास्ट 5-10 years में हम बात करेंगे तो इंडिया ने उसका वास्टली यूज करना स्टार्ट कर दिया है. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि तो हम देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग अभी कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक पहुंच गया है, और उसका बियॉन्ड द इमेजिनेशन उसका एप्लीकेशन कहाँ तक है. तो जैसे हमने बताया कि रिमोट सेंसिंग 1960s के अराउंड स्टार्ट हुआ था, और 1972 नासा का लैंडसेट 1 मतलब काफी रिनोन्ड एक सीरीज ऑफ सैटेलाइट है नासा का लैंडसेट सीरीज. उसका जब पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था लैंडसेट 1 1972 में, उसके बाद से रिमोट सेंसिंग का यूज थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि हमें उसका एक बेटर डेटा मिलने स्टार्ट हो गया है. और लैंडसेट सीरीज आज भी मतलब आप देखोगे तो लैंडसेट 8 पे हम अभी ही 2022 मिड जून जुलाई में उसका यूज करना स्टार्ट किया था, और काफी लाइक वेरी यूजफुल सीरीज ऑफ सैटेलाइट. अभी हमने देखा कि इसरो भी बहुत उसमें काम कर रहा है, और लाइक वी आर गोइंग नेक टू नेक. लाइक ऐसा नहीं है कि हम अभी एक किसी नेशन पे डिपेंडेंट है. इसरो भी अपना बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है, और अगर आप अहमदाबाद या अहमदाबाद के आजू बाजू में कहीं पर रहते हैं तो आप जरूर इसरो का जो सैक है मतलब अहमदाबाद का सेंटर है उसको जरूर विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि जितना भी एप्लीकेशन पार्ट है, ताकि
देखो इसरो का जितना भी सेंटर्स है, जैसे हैदराबाद सेंटर है तो वो सैटेलाइट डेवलपमेंट में काम करता है, देहरादून में एक सेंटर है तो वो उसको कैसे आगे लेके जाना है टेक्नोलॉजी को उसके लिए काम करता है। तो वैसे ही इसरो का अहमदाबाद स्टेशन जो है वो उस पर काम करता है कि जो सैटेलाइट डेटा हमें आता है उसका एप्लीकेशन अलग अलग फील्ड में कैसे करना है। तो आई इंसिस्ट यू गाइस कि एक बार अहमदाबाद इसरो स्टेशन जरूर से विजिट कीजिए। जैसे मैंने बताया कि किसी भी रिमोट सेंसिंग, अगर रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं तो किसी भी चीज का अगर दूर से इंफॉर्मेशन लेना है तो उसको रिमोट सेंसिंग कहते हैं। मगर जैसे इसमें भी लिखा है प्रेजेंटेशन में कि दैट इज नॉट any clear distinction about the distance. It could be like 1 meter, 1000 meter, or even thousands of kilometers. रिमोट सेंसिंग में मैंने बात किया तो ह्यूमन आई भी आता है, हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आता है और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी आता है। हम 1 मीटर दूर से भी, जैसे ड्रोन हमारा है तो वो अराउंड 100 मीटर 200 मीटर्स की हाइट पे फ्लाई करता है। हमारा सैटेलाइट्स होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अबाउट द ग्राउंड लेवल भी डेटा एक्वायर करता है और वो डेटा हम यूज करते हैं। तो देयर इज नॉट क्लियर डिस्टेंस कि रिमोट सेंसिंग में कितना दूर होना चाहिए हमारा सेंसर। The characteristics of an object can be determined using reflected or emitted electromagnetic radiation from the object. जैसे मैंने फ्लो प्रेजेंटेशन में भी बताया कि अगर हमें किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन चाहिए तो जैसे हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रेजेंटेशन में वैसे हम बात भी करेंगे कि जैसे सन का रेज ग्राउंड सरफेस पे आता है तो वो कैसे इंटरेक्ट करता है। जैसे ग्राउंड सरफेस पे अगर सन का रेज पहुंचा वो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है कि जैसे गामा रेज से लेकर माइक्रोवेव रेज भी आता है ग्राउंड पे। और जैसे ग्राउंड का अलग अलग, जैसे बिल्डिंग को अगर हिट करेगा रेज तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, अगर सॉइल पार्ट पे हिट करेगा तो वो एक अलग रिएक्ट करेगा। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। Today, most natural mapping, resource mapping is done using remote sensing. Aerial photography has been used to virtually produce all the topographic maps such as forest map, geological map, land use maps, and soil maps. It is also used to prepare detailed city maps. जैसे हम रास्ते में कहीं पे जा रहे होंगे या कितने भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी होंगे, हम सबने कहीं ना कहीं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा। तो साउंड क्लियर नहीं आ रहा है सर आपका। ओके ओके सॉरी, आपकी आवाज सर कट कट के आ रही है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। इज इट, जैसे हमने देख रहे थे कि हम ऑटोकैड और ट्रेडिशनल सर्वे मेथड्स की बात कर रहे थे। हमने कितनों ने देखा होगा कि जो थियोडोलाइट्स है, टोटल स्टेशंस है और अलग अलग सर्वे के इक्विपमेंट्स है वो पहले यूज करते थे। उसमें मतलब लाइक कभी कभी क्या होता था कि जब माउंटेन का सर्वे करना होता था कि माउंटेन का स्लोप क्या है, उसका कंटूर लेवल्स क्या है, लाइक ऑल दी अदर आउटपुट्स दैट इज जनरली डेवलप्ड बाय द ट्रेडिशनल सर्वे मेथड्स, वो डिफरेंट टेरेन्स के लिए बहुत टफ हो जाता था और इट इज लाइक वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी कॉस्टली। बट इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रोन टेक्नोलॉजी इन द सर्वेइंग एंड मैपिंग हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द होल सर्वेइंग प्रोसेस। आज ड्रोन लैब टेक्नोलॉजीज भी सर्वेइंग और मैपिंग में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कितनी सारी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम कर रहा है और बहुत सक्सेसफुली और बहुत कम टाइम में बहुत चीपली रिजल्ट्स डिलीवर कर रहा है। तो आने वाले समय में आज आप सब लोग जुड़े हैं वो बहुत ही एक अच्छा आपका सबका स्टेप है कि आप फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हो और आगे जाकर के रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, जीआईएस टेक्नोलॉजी सारे ट्रेडिशनल सर्वे मेथड्स को रिप्लेस करेगा। और आज हम कितनी सारी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करते हैं, अर्बन प्लानर्स के साथ काम करते हैं, तो धीरे धीरे जीआईएस टेक्नोलॉजी और रिमोट सेंसिंग ने ट्रेडिशनल मेथड्स को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया है। तो फ्यूचर तो नहीं बोलना चाहिए मगर आने वाले 1-2 साल में ही आप देखोगे कि ये सारी जो ऑब्सोलेट टेक्निक्स है या फिर ट्रेडिशनल मेथड्स है वो रिप्लेस हो जाएगी। सो दिस इज द पावर ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए काम में है, जैसा हमारे साथ आईटी सेक्टर से भी बहुत लोग जुड़े हैं। तो हम आगे देखेंगे कि आईटी सेक्टर के लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर साथ जुड़े हैं। तो हम देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट भी ड्रोन्स को लेकर के, सैटेलाइट्स को लेकर के कितना काम कर रहा है और कितना एग्रेसिवली काम हो रहा है। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे काम कर सकते हैं। सो लाइक दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग कि एक तो परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे हमने देखा कि ट्रेडिशनल मेथड्स कोई भी यूज के लिए हो,
तो उसमें पेन पेपर वाला पूरा हिसाब किताब निकल जाएगा और पूरा डिजिटल रिकॉर्ड्स हमारे पास होंगे. लार्ज एरिया कैन बी कवर्ड इन लाइक वेरी स्विफ्टली, द सर्वे कैन बी डन. रिपीटेटिव कवरेज अगर किसी भी चीज का लेना है कि हमें वाटर का क्वालिटी अगर मैप करना है कि मान लो कि साबरमती रिवर अहमदाबाद में है, तो उसका क्वालिटी अगर हमें चेक करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो इजीली कर सकते हैं. एग्रीकल्चर में जैसे हमने बात किया कि क्रॉप का हेल्थ कैसा है, सॉइल का हेल्थ कैसा है, अगर रिपीटेटिव हमें डेटा लेना है तो इट विल बी क्वाइट इजी डेटा एक्विजिशन हो सकता है ड्रोन से, सैटेलाइट से. ग्राउंड वर्क काफी कम हो सकता है. अगर हमें डेटा एक्विजिशन की बात करते हैं तो जैसे अभी हमने एक 6 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया था, तो वी जस्ट कवर्ड 6 किलोमीटर स्क्वायर इन जस्ट 6 days. लाइक अगर हम उसको ट्रेडिशनल मेथड से देखेंगे या करेंगे तो लाइक महीने निकल जाएंगे अगर वो करना है. ओके, सो वी वर एट द एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग. So first element of the remote sensing process is energy source. So our energy source will be our sun, which will throw the energy, that is electromagnetic energy, to our target, so that it will interact with the target and the other processes will go ahead. Okay, so once the energy is propagated by the sun, from travel through a vacuum and then it will interact with the atmosphere. That will be our second element of remote sensing. So once the energy comes in the interaction of atmosphere, there are some adulterations. जैसे ही हमारा एनर्जी एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसमें कुछ अडल्ट्रेशन आएगी, उसका वेवलेंथ में मॉडिफिकेशन होगा, बिकॉज देयर आर सम dust particles, even clouds, air, and clouds are dust particles, water vapor are also present in the atmosphere. So they will adult our energy. Once the energy passes through the atmosphere, it will interact with the target, that is our ground surface, and then the reflected energy will go back to the sensor. The sensor will then transmit all the data to the station at the ground. Then all the interruption and analysis will be done at the laboratory for the data received from the sensor, and then the applications of the data received will be done. There are basically two types of remote sensing. First there is passive remote sensing and the other is active remote sensing. So firstly, understanding the passive remote sensing. So just like I पहले भी जैसे हमने बात किया कि किसी भी अगर टारगेट का हमें डिटेल्स चाहिए या उसका डेटा चाहिए तो उसके ऊपर लाइट हमें थ्रो करना पड़ेगा. लाइक देयर आर टू टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग. एक प्लेटफॉर्म कि जिसके पास अपना खुद का लाइट है, वो खुद लाइट थ्रो करेगा और उसका इंफॉर्मेशन लेगा. और सेकंड कि जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं है, वो सन या किसी आर्टिफिशियल लाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि चीज पे लाइट थ्रो करेगा, इंफॉर्मेशन लेंगे. तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि ह्यूमन आई है वो सेंसिंग प्रोसेस है या हम अपना चैट बॉक्स में आंसर देंगे. ओके, सो हर्षद इज राइट. आवर human eye is a passive remote sensing process because our human eye can't see anything in dark. We need a artificial energy source, that is our tube lights in our room or sun in the outdoors. So our human eye is a passive remote sensing process क्योंकि हमें एक अलग आर्टिफिशियल और नेचुरल एनर्जी सोर्स का जरूरत है किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन लेने के लिए. वैसे ही अलग अलग सैटेलाइट्स है, इतनी सैटेलाइट्स ऐसी है कि वो अपना खुद का लाइट थ्रो करके उसका ही रिफ्लेक्शंस लेता है. और देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स की जो सन पे डिपेंडेंट है अपनी टारगेट का डेटा लेने के लिए. तो जैसे हम अभी पैसिव रिमोट सेंसिंग को थोड़ा समझेंगे कि पैसिव डिटेक्शन कैन ओनली वर्क व्हेन द नेचुरल अकरिंग एनर्जी इज अवेलेबल. अगर सन नहीं है तो पैसिव रिमोट सेंसिंग काम नहीं कर सकता. मतलब दे ओनली कैन एक्वायर डेटा इन द डे लाइट, नॉट दे कांट वर्क इन द नाइट. फिर जैसे हमने अभी बात किया कि अर्थ के साथ एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा सन का एनर्जी, तो जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आएगा तो उसको क्लाउड, डस्ट, स्मोक और अदर पार्टिकल्स के साथ उसका इंटरेक्शन होगा. उसका जितना भी रेडिएशन है उसमें थोड़ा बहुत अडल्ट्रेशन आएगा, उसका वेवलेंथ चेंज होगा.
और एक्टिव रिमोट सेंसिंग पैसिव इलेक्ट्रो विजिबल रीजन में ही काम कर सकता है। विजिबल रीजन हम समझेंगे कि जितनी भी हम लाइट देखते हैं उसके अलावा भी कितनी सारी रेज सन से आती है जो हम नहीं देख पाते हैं, मगर उसका भी इंपॉर्टेंस है रिमोट सेंसिंग में। सो अगर बेस्ट एग्जांपल हमें देखना है तो हमारा नॉर्मल कैमरा जिसमें फ्लैश नहीं है उसको हम पैसिव रिमोट सेंसिंग कह सकते हैं। कितने सारे ड्रोन्स भी ऐसे है कि उसका खुद का लाइट है उसके पास, और देयर आर मेनी अदर ड्रोन्स की जो डे लाइट में ही डेटा एक्वायर कर सकता है। बंद करो भैया, गुरु मैच गया था, तुम देखा था? मुझे खाली छेद पे ध्यान रहता है। अमित सिंह, कैन यू म्यूट योर माइक? ओके, सो नाउ एक्टिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग के पास अपना खुद का एनर्जी सोर्स होता है, वो जो खुद थ्रो करेगा और खुद ही रिसीव करेगा। जैसे हमने बात किया कि पैसिव रिमोट सेंसिंग विजिबल रीजन में काम करता है, वैसे ही एक्टिव रिमोट सेंसिंग माइक्रोवेव रीजन में ज्यादा काम करता है। जैसे हमने देखा होगा कि हमारा जो डॉपलर रडार यानी माने कि जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं हमारे, वो ग्राउंड बेस्ड होते हैं और वो खुद अपना एनर्जी थ्रो करते हैं और रिसीव करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि डॉपलर रडार सार कैसे काम करता है, वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, हम आगे चल के समझेंगे इसको। प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। The sun and various artificial sources radiate electromagnetic energy of variable wavelengths. All objects on the Earth's surface have spectral signatures. A spectral signature of an object or ground surface is a set of values for the reflectance of radiance of feature. जैसे ही सन का एनर्जी वाटर पे पड़ेगा, ग्रास पे पड़ेगा, बेयर सॉइल पे पड़ेगा, या फिर पेव रोड पे पड़ेगा, या फिर बिल्डिंग पे पड़ेगा, हर एक फीचर का अपना अलग अलग रिएक्शन होगा। जैसे सन का रेज ग्रास पे पड़ा तो वो कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, बिल्डिंग पे पड़ा तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, और जैसे ही वो सिग्नल फिर से सैटेलाइट पे आता है तो उसका इंटरैक्शन होता है कि वो किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। The response of the ground surface material to incident radiation is the reflectance, and the emitted energy by all objects as a function of their temperature and structure is the emittance. The reflectance and emittance determine the signatures. When the radiation is incident on a surface, it is reflected, absorbed, scattered, and transmitted. All the processes are strongly dependent on the wavelength of the incident radiation as well as the atomic and molecular structure of the material. जैसे सन का रेज अगर ग्रास पे पड़ेगा तो वो कितनी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, कितनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग सीजन में हमें अलग अलग पेड़ का कलर दिखता है। जैसे हम अगर मानसून या विंटर की बात करेंगे तो हमें पेड़ का कलर ग्रीन दिखता है, मगर जैसे ही पतझड़ आता है तो हमें रेड या येलोइश कलर का ग्रास दिखने लगता है। तो अलग अलग सीजन में अलग अलग वेवलेंथ पे हमारा पेड़ कैसे रिएक्ट करता है, उसका हेल्थ कैसा है, वो सब हम इस वेबिनार के माध्यम से सीखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अभी आगे भी हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत ही फ्रिक्वेंटली एक टर्म है जो हम यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है उसको हम थोड़ा डिटेल में सीखेंगे। जैसे राइट साइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं कि एक पूरा एनर्जी का अलग अलग वेवलेंथ पे एनर्जी कौन कितनी एनर्जी पे, जैसे मान लो कि 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर पे ब्लू, रेड और ग्रीन कलर का लाइट है तो वो विजिबल है। उसके बियॉन्ड और उसके बिलो जितनी भी एनर्जी है वो ह्यूमन आई से नहीं देख सकते, बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है। जस्ट बिकॉज ह्यूमन आई से हम नहीं देख सकते, इट डजंट मीन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ से स्टार्ट करेंगे तो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी दैट इज अल्ट्रावायोलेंट, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज एंड माइक्रोवेव्स। तो अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग एनर्जी आती है। हम देखेंगे कि कौन एक्स रेज का कितना रेंज है, माइक्रोवेव्स का कितना रेंज है, इंफ्रारेड्स का कितना रेंज है। अलग अलग वेवलेंथ
किस डिटेक्शन में काम करते हैं। जैसे शॉर्ट वेवलेंथ है, जैसे कि हमारा कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, वो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक टाइप्स में उपयोग होता है। जैसे अगर हमें ग्राउंड वाटर का अगर डिटेक्शन लेना है, जैसे ग्राउंड के अंदर कितना पानी है, कहाँ पानी है, कैसे फ्लो हो रहा है, अगर उसका हमें स्टडी करना है तो हमें एक्स रेज और गामा रेज का स्टडी करना पड़ेगा। अगर किसी भी चीज का हमें टेम्परेचर चेक करना है तो उसके लिए हमें थर्मल इंफ्रारेड, जो इंफ्रारेड रीजन में फ्लो होता है, उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। माइक्रोवेव रेज जो है वो रडार और माइक्रोवेव रेडियोमेट्री, मतलब हमारा जो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट है, हमारा रेडियो ब्रॉडकास्ट है, और उसके बियॉन्ड भी, मतलब जो वॉल्केनिक इरप्शन है और कितनी सारी बिलो द अर्थ प्रोसेसेस होती है, उसके लिए हमें माइक्रोवेव एनर्जी के लिए जाना पड़ेगा। विजिबल रेंज है हमारा जो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर्स में लाई करता है, तो उसको हम कैसे उपयोग में ले सकते हैं, वो बेसिकली जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, मतलब फोटोग्राफी कर सकते हैं, इमेजेस ले सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ये पूरा रेंज है कि गामा रेंज जो है हमारा वो 0.03 नैनोमीटर से भी कम वेवलेंथ में लाई करता है। वैसे ही हमारा एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट लेंथ है, रेंज है। बाद में जो इंफ्रारेड है उसको हमने 3 हिस्सों में बाइफरकेट किया है, नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। नियर इंफ्रारेड इंफ्रारेड जो है वो हम वेजिटेशन, मतलब क्रॉप की हेल्थ कैसी है, उसके लिए हम उपयोग लेते हैं। माइक्रोवेव रेंजेस है, रेडियो वेव्स है, तो अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग एनर्जी लाई करती है। इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस, जैसे हमने अभी ऊपर से देखा कि जैसे ही एटमॉस्फेयर और अर्थ सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो कैसे होगा, उसको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। और कौन सा हिंड्रेंस है कि क्या क्या हमें दिक्कत ला सकती है, वैसी चीजों के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो जैसे ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारा एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसमें 2 प्रोसेस हो सकती है कि जितना भी एनर्जी हो वो पूरा एब्जॉर्ब कर ले हमारा डस्ट पार्टिकल्स और जो अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, या तो फिर उसको स्कैटर कर दे। मतलब अगर उस डस्ट पार्टिकल को हिट करेगा हमारा रेडिएशन तो उसको अलग दिशा में भेज देगा, मतलब उसको डिविएट कर देगा, ताकि हमारा जो भी एनर्जी है वो हमारा ग्राउंड पे टारगेट एनर्जी से ना मिल पाए। तो एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि वो कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन होता है इन द अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि जहां पर हमारा ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर अवेलेबल होता है। हम जानते हैं कि ओजोन लेयर क्या काम करता है। ओजोन लेयर जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फार इंफ्रारेड पोर्शन में जितनी भी एनर्जी होती है उसका एब्जॉर्प्शन करता है। और वाटर वेपर है वो लॉन्ग इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव माइक्रोवेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका खुद का अलग अलग एक महत्व है। हम जानते हैं कि ओजोन लेयर अगर नहीं होगा तो सीधा अल्ट्रावायलेट रेज हम पर आएंगे और हमें ही नुकसान करेंगे। तो अगर ये एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग का एक नुकसान है तो उसका फायदा भी है। स्कैटरिंग, जैसे हमने देखा कि अगर अलग अलग डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में होंगे तो वो उसको स्कैटर कर देंगे, अलग दिशा में भेज देंगे, या फिर उसके एनर्जी को डिविएट करेंगे, उसकी एनर्जी को बढ़ा देंगे, उसके एनर्जी को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। उसका अडल्ट्रेशन ये हो सकता है कि जैसे ही हमारा अगर हाई एनर्जी का वेवलेंथ अगर ग्राउंड को हिट करता है और लो एनर्जी का वेवलेंथ हमारे अर्थ को हिट करता है तो इट विल रिएक्ट डिफरेंटली। मतलब जो ओरिजिनल वेवलेंथ अगर हिट करेगा और ये अडल्टेड एनर्जी हमारे ग्राउंड को हिट करेगा, देयर आर डिफरेंट आउटपुट्स फ्रॉम इट। मतलब हमारा जो इंटेंशन था उसको भेजने का, इट विल वोंट वर्क। तो हम समझेंगे कि जो टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग है, हमारा सिलेक्टिव स्कैटरिंग, नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग, वो अलग अलग मटेरियल किसके साथ क्या अडल्ट करता है वो हम थोड़ा समझेंगे। रेलिक स्कैटरिंग है वो छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेलिक स्कैटर करते हैं और शॉर्टर वेव वायोलेंट और ब्लू वेवलेंथ को ज्यादा इफेक्ट करते हैं। मी स्कैटरिंग, मतलब जो ये रेलिक स्कैटरिंग है वो टॉप पोर्शन में एटमॉस्फेयर के होता है, और मी स्कैटरिंग है वो बिलो 4.5 एट टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इफेक्ट करता है।
और इसका साइज रहता है 0.1 to 10 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ। रमन स्कैटरिंग होता है, नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग होता है। इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद अर्थ सरफेस। जैसे ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थ सरफेस को हिट करेगा तो उसका अलग अलग रिएक्शन होंगे। वो ट्रांसमिट भी हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है, स्कैटर हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है। वो हम देखेंगे कि अलग अलग अर्थ का सरफेस है। अगर सॉइल की हम बात करेंगे तो सॉइल का सरफेस कितना रफ है उसके हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। सॉइल का कलर क्या है, जैसे हम अगर गुजरात में देखेंगे तो सॉइल का कलर ब्लैक है तो डिफरेंटली रिएक्ट करेगा। महाराष्ट्र में हम जाएंगे तो सॉइल का कलर रेड है तो वो उसको अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर हम सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में चले जाएंगे उधर येलोइश सॉइल है तो वो अलग तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिएक्ट करेगा। तो जैसे हमने बताया कि अर्थ 5 तरीकों से रिएक्ट करता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। तो वो ट्रांसमिट हो सकता है, स्कैटरिंग कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, रिफ्लेक्ट करता है या तो इमिट करेगा। सबसे पहले ट्रांसमिशन। जैसे ही ट्रांसमिशन मतलब जैसे ही अर्थ का बेयर सॉइल पे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हिट करा तो वो उसे ट्रांसमिट कर सकता है, मतलब उसके अंदर बीनीथ जो लेयर से उतर पास कर देगा और वो उसको अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। एब्जॉर्ब है तो उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इमिशन है मतलब मान लो कि बहुत हाई टेम्परेचर का रेडिएशन अर्थ की सरफेस को हिट करता है तो वो उसके रिएक्शन में कौन सा एनर्जी इमिट करता है वो भी एक अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। स्कैटरिंग है तो जैसे हमने बात किया कि अगर एटमॉस्फेयर में अर्थ का पार्टिकल स्कैटर हो सकता है तो वैसे ही ग्राउंड सरफेस पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्कैटर हो सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। जैसे ही एनर्जी ग्राउंड के सरफेस को हिट करेगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा और जो कुछ भी उसका रिफ्लेक्शन है वो सेंसर को भेज सकता है। तो अगर ऐसा है तो फिर हमने देखा कि ज्यादातर डेटा तो हमारा ऐसे ही लॉस हो रहा है, हमें कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा। सैटेलाइट जो हम ऊपर भेज रहे हैं उसका कुछ यूज ही नहीं कर पा रहे हम लोग। तो उसके लिए क्या हो सकता है, तो एक एटमॉस्फेरिक विंडो नाम का फिनोमिना है कि जिससे हमारा जो कुछ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमारा जितने भी हिंडरेंस है, मतलब जो एटमॉस्फेयर है और ग्राउंड सरफेस पर जो भी हिंडरेंस है उसको ओवरकम करता है। एटमॉस्फेरिक विंडो मतलब अगर हम सादा आसान भाषा में कहूँ तो जैसे ही हमारे वॉल में जो विंडो है वहां से कुछ भी चीज पास हो सकती है, वैसा ही एटमॉस्फेयर में एक विंडो होती है जहाँ पे हमारा विजिबल इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स पास कर सकता है। तो वैसी एक विंडो जैसे हमने देखा कि लेफ्ट साइड मतलब शॉर्टर वेवलेंथ है वो कंप्लीटली ओपेक है, मतलब ओजोन हमारा ओजोन लेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, वो किसी भी चीज को पास नहीं होने देता। मगर विजिबल रेंज में जितनी भी एनर्जी लाई करती है वो इजीली पास हो सकती है, उसको कोई भी हिंड्रेंस अफेक्ट नहीं कर सकता। इंफ्रारेड विंडो पे जैसे आप देख सकते हैं कि देयर आर सम हिंड्रेंस मगर पूरा ओपेक नहीं है। और जैसे हमने देखा कि माइक्रोवेव और रेडियो वो कंप्लीटली ओपेक रीजन में लाई करता है ताकि उसको कोई अडल्ट्रेशन ना नड़े। तो उसके लिए एटमॉस्फेरिक विंडो है आसान भाषा में अगर हम बात करेंगे। और जैसे ही हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक विंडो सैटेलाइट डेटा को अफेक्ट करता है तो हमारा जो ड्रोन है उसके लिए ये बाधाएं काफी कम हो जाती है, क्योंकि ड्रोन एक अलग हाइट से मतलब एटमॉस्फेयर के जो ये पार्टिकल्स है उससे काफी नीचे फ्लाई करता है। तो ड्रोन डेटा इसीलिए आजकल ड्रोन का उपयोग भी ज्यादा हो रहा है। हम अगर देखेंगे तो जो जितनी भी एजेंसीज है जो पहले सैटेलाइट डेटा पे डिपेंडेंट रहती थी आज वो खुद ड्रोन सर्विसिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो डेटा का क्वालिटी है, डेटा का जो रिजोल्यूशन है वो काफी हाई रहता है ड्रोन के साथ। इसीलिए ड्रोन टेक्नोलॉजी बूमिंग इंडस्ट्री है। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व जैसे अभी हमने बात किया कि वेजिटेशन हो या फिर अलग अलग जितने भी फीचर है ग्राउंड के वो अलग अलग स्पेक्ट्रल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके साथ कैसे अफेक्ट करता है और अलग अलग वेवलेंथ पे वो कैसे रिएक्ट करता है उसको स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं। वेजिटेशन हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया,
स्नो या क्लाउड हो गया, वो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कैसे रिएक्ट करता है वो हम इस सेक्शन में देखेंगे। जैसे अभी हमने बात किया पहले कि वेजिटेशन, तो वेजिटेशन हमें ग्रीन क्यों दिखता है? क्योंकि वेजिटेशन लीव में जो क्लोरोफिल रहता है वो रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन कलर को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हमें जो ट्रीज के लीफ होते हैं वो ग्रीन दिखते हैं। अभी जैसे हमने बात किया कि ऑटम सीजन मतलब जो पतझड़ होती है उसमें हमें हमारे जो पेड़ के पत्ते हैं वो लाल या येलोइश क्यों दिखते हैं? बिकॉज उस सीजन में क्लोरोफिल कम हो जाता है ताकि वो ग्रीन और ब्लू को एब्जॉर्ब ज्यादा करता है और रेड और येलोइश कलर जो होते हैं उसको ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमें उस सीजन में रेडिश लीफ दिखते हैं। सॉइल की हम बात करेंगे तो अलग अलग, जैसे हमने बताया कि अगर ड्राई सॉइल है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, अगर वेट सॉइल है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, अलग अलग सॉइल पार्टिकल्स माने कोर्स सॉइल है या फाइनर सॉइल है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा हम देखते हैं इस सेक्शन में। सॉइल अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो वो रिफ्लेक्ट कम करेगा और अगर ड्राई सॉइल है तो उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा रहेगा। अगर कोर्स पार्टिकल का सॉइल है मतलब उसमें ड्रेनेज अच्छे से हो सकता है तो वो ड्राई सॉइल हो गया तो वो भी अच्छे से एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगा। अगर ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा उसका मतलब है कि हमारा सॉइल ड्राई है। वाटर क्वालिटी के लिए हम सैटेलाइट डेटा, ड्रोन डेटा का यूज करते हैं। हम अगर मान लो कि आज ड्रोन डेटा से भी कितना वाटर क्वालिटी का मैपिंग चल रहा है, साबरमती रिवर जो अहमदाबाद में है उसका भी वाटर क्वालिटी मैपिंग का काम ड्रोन लैब टेक्नोलॉजी कर रहा है। तो हम उसको थोड़ा एक बियॉन्ड अभी तक जो चल रहा था कि हम नॉर्मल कैमरास जो होते हैं उससे एक लेंस ज्यादा, मतलब जो नियर इंफ्रारेड लेंस होती है मतलब मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा से उसका मैपिंग होता है। और मान लो कि अगर पानी में ज्यादा अलगी मतलब जो लील होते हैं वो अगर ज्यादा प्रेजेंट है तो पानी अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। पानी में अगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स अगर ज्यादा है तो वो डेटा अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर सैलो वाटर है तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है, अगर डीप वाटर है तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है। पानी का ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, वो कितना होता है तो अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो उसके हिसाब से पूरा इंटरप्रिटेशन होता है और फिर वाटर क्वालिटी का रिपोर्ट जनरेट होता है। स्नो और क्लाउड मतलब अगर ग्लेशियर मैपिंग की बात अगर हम करें तो आज ग्लेशियर मैपिंग बहुत इफेक्टिवली ड्रोन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से हो रहा है। अलग अलग रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम जानेंगे। जैसे ये सैटेलाइट होता है उसके अंदर एक सेंसर होता है, वो ग्राउंड पे भी मतलब जो माइक्रोवेव मतलब जो सैटेलाइट ये ब्रॉडकास्टिंग के जो होते हैं वो ग्राउंड पे बेस्ड होते हैं। हमारा एरियल प्लेटफॉर्म्स माने हमारे ड्रोन्स जो होते हैं वो ड्रोन्स होते हैं, हेलीकॉप्टर से पहले होता था अब ड्रोन से होने लगा है। और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म माने स्पेस बॉर्न, मतलब 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म है रिमोट सेंसिंग के। एरियल प्लेटफॉर्म आज सबसे ज्यादा इफेक्टिवली यूज हो रहा है, सर्वेइंग मैपिंग हो, आर्कियोलॉजिकल स्टडीज हो, फोटोग्रामेट्रिक स्टडी हो, उसके लिए एरियल प्लेटफॉर्म का यूज हो रहा है। सैटेलाइट प्लेटफॉर्म मतलब हमारा जो सैटेलाइट होता है वो स्पेस बॉर्न है और 2 तरीके से ऑर्बिट करता है अर्थ के अराउंड। कोई भी सैटेलाइट हो वो 2 तरीके से ऑर्बिट करता है। सबसे पहला है जियो सिंक्रोनस और सैटेलाइट और स्टेशनरी ऑर्बिट, और दूसरा है सन सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस को हम एक एक करके समझेंगे कि वो कैसे काम करता है। जियो सिंक्रोनस मतलब कोई भी एक सैटेलाइट, मतलब मान लो कि अगर एक सैटेलाइट इंडिया के रीजन को ही कवर करना है तो वो अर्थ के रिलेटिवली अर्थ की स्पीड से ही घूमेगा और इंडिया के ऊपर ही रहेगा, और अर्थ जिस स्पीड से घूमेगा उसी स्पीड से वो भी घूमेगा। और हमें 365 डेज अर्थ इंडिया में क्या डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं वो हमें जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट से पता चलता है। और दूसरा होता है सन सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स की हाइट थोड़ी कम होती है, वो 300 से 1000 किलोमीटर
अबव अर्थ ग्राउंड सरफेस मूव करते हैं, और उसका एक साइकिल पीरियड रहता है। या तो वो कितनी सैटेलाइट होती है वो एक दिन में पूरा अर्थ का चक्कर लगाती है, कितनी होती है वो 14 डेज, कितनी होती है वो 21 डेज में पूरा अर्थ का चक्कर लगाते हैं। मगर उसका एक डेफिनेट टाइम होता है कि अगर अहमदाबाद का जो रीजन है वो सेम टाइम पे, मतलब मान लो कि आज फर्स्ट डेट है तो वो 21st डेट को भी सेम डेट पे उसी पोजीशन में आके उसको पूरा कवर करेगा। उसको सन सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट कहते हैं। टाइप ऑफ स्कैनर्स, there are basically 3 type of scanners: multispectral scanner, thematic mapper and thermal scanner। सबसे पहले हम मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर को समझेंगे। मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर को समझने से पहले हमें जो सिंपल स्कैनर होता है वो समझना पड़ेगा। सिंपल स्कैनर मतलब जो हमारा नॉर्मल मोबाइल का कैमरा हो गया, या फिर जो हम बेसिकली नेकेड आई से देख सकते हैं, वैसा अगर कोई स्कैनर हो तो उसे हम नॉर्मल स्कैनर कहते हैं। मगर उसके अलावा जो हमारा नियर इंफ्रारेड है या फिर अल्ट्रावायलेंट है, उसको अगर हमें कवर करना है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एक कैमरा लगाना पड़ेगा। तो उसे हम मल्टीस्पेक्ट्रल, जो मल्टीस्पेक्ट्रम में काम कर सकता है, जैसे विजिबल रेंज हो, और उसके अलावा इंफ्रारेड में भी 3 पार्ट है, नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, शॉर्ट लार्ज इंफ्रारेड। उसको अगर कवर करेगा तो हम उसको मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर बोलते हैं। thematic mapper is just a kind of multispectral, but it is like very higher spatial, spectral और radiometric accuracy काफी उसकी ज्यादा है। थर्मल स्कैनर अभी थर्मल कैमरास ड्रोन के साथ भी काफी अच्छा से यूज होने लगे हैं। जैसे अगर किसी भी चीज का हमें टेम्परेचर मापना हो तो वो हम थर्मल स्कैनर्स के माध्यम से कर सकते हैं। कितनी सैटेलाइट्स भी हैं जो थर्मल स्कैनर यूज करती है, मगर जो ड्रोन का डेटा है वो काफी हाई रिजोल्यूशन मिलता है और काफी एक्यूरेट डेटा हमें ड्रोन थर्मल स्कैनर से मिलने लगे हैं। अभी जैसे हमने कोविड के टाइम पे देखा तो उसमें थर्मल स्कैनर्स का, थर्मल कैमरा वाले ड्रोन्स का काफी यूज हो रहा था। अगर कोई लॉकडाउन तोड़ के घर के बाहर गया है तो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कुछ अलग होगा, अगर उसको कोविड है तो वो पता चलेगा। तो ड्रोन लैब टेक्नोलॉजी भी उसमें पूरा एक ड्रोन स्क्वाड बना करके पूरा गुजरात और बाकी स्टेट्स के पुलिस के साथ भी काम कर रहे थे और थर्मल कैमरा का बहुत अच्छे से यूज कर रहे थे। अलग अलग जो इमेजेस डेवलप होती है उसको हम समझेंगे। इमेज के रिजोल्यूशन, मतलब रिजोल्यूशन 4 अलग अलग टाइप्स के होते हैं: स्पाशियल रिजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, टेम्पोरल रिजोल्यूशन और रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। तो स्पाशियल रिजोल्यूशन क्या है? अगर आप राइट साइड में देख सकते हैं तो एक इमेज है जो दिखा रहा है कि हाई रिजोल्यूशन और लो रिजोल्यूशन। अगर हम किसी भी इमेज का पिक्सल जो ज्यादा अगर बड़ा हो तो उसे लो क्वालिटी का इमेज कहेंगे, और जिसका भी पिक्सल जितना छोटा होगा उसको हाई रिजोल्यूशन इमेज कहेंगे। आज अगर हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी को कंपेयर करेंगे तो हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में हमें एक एक पिक्सल 30 मीटर 60 मीटर्स के मिलते हैं, जबकि ड्रोन टेक्नोलॉजी में वही पिक्सल्स हमें सेंटीमीटर में मिलते हैं। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के हिसाब से मिलते हैं। जितना हमारे प्लेटफॉर्म का हाइट ज्यादा होगा, मान लो अगर सैटेलाइट है वो हमारा हजारों किलोमीटर ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रिजोल्यूशन काफी लो होगा। और अगर हाई रिजोल्यूशन में काम करना है तो ड्रोन टेक्नोलॉजी इज द ओनली ऑप्शन टुडे, कि अगर हमें हाई स्पाशियल रिजोल्यूशन में काम करना है तो हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी ऐसा एक माध्यम है कि जिससे हमें स्पाशियल रिजोल्यूशन हाई मिल सकता है। Spectral resolution is the like ability of a scanner to differentiate in the subcategory। जैसे अगर मान लो कि राइट साइड में आप देख सकते हैं कि अगर हम बाइफरकेट करने लगे और बिल्ट अप एरिया, एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड, वाटर बॉडीज को अगर हम डिटेक्ट कर लेंगे, मगर उसके अंदर भी बाइफरकेट करना है कि जैसे कोई अर्बन लैंड है तो वो डेंस अर्बन है, मॉडर्न अर्बन है या स्पार्स अर्बन कवरेज है, एग्रीकल्चर है तो उसमें क्रॉप लैंड है या फैलो लैंड है। अगर डिटेल्ड जितना ज्यादा कर सकेगा तो उसके लिए हम स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन टर्म को यूज करते हैं। टेम्पोरल रिजोल्यूशन जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि एक कोई सैटेलाइट है जो 21 दिन में एक एरिया कवर करता है, कि मान लो अगर अहमदाबाद में वो आज की तारीख में है, मतलब
फर्स्ट ऑफ जून है, तो वो 21 डेज के बाद मतलब 22 जून को वो एरिया कवर करेगा। तो 22 दिन में कितनी भी एक्टिविटीज हो सकती है। तो टेम्पोरल रिजोल्यूशन ड्रोन टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे से मिल सकता है और बहुत हाई रिजोल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे इतना डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर मान लो कि हम एग्रीकल्चरल मैपिंग कर रहे हैं और एग्रीकल्चर में हर वीक में या हर 15 दिन में हमें क्रॉप का डेटा चाहिए कि क्रॉप में क्या डिसीज है, क्रॉप का कितना हेल्थ क्या है, सॉइल का हेल्थ क्या है, तो उसके लिए हम सैटेलाइट डेटा पे निर्भर नहीं रह सकते। क्योंकि अगर हम ड्रोन फ्लाई करना है तो हम हमारी मर्जी के हिसाब से पूरा उसका शेड्यूल बना सकते हैं कि अगर 7 दिन में भी हमें डेटा चाहिए तो हमें मिल सकता है। मतलब एक एरिया को कितने टाइम में हम फिर से कर सकते हैं, उसको टेम्पोरल रिजोल्यूशन बोलते हैं। और रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन, कोई भी एक टारगेट को अपने रिफ्लेक्टेंस के हिसाब से कितना हाई क्वालिटी में डिफरेंशिएट करना है, तो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन उसके लिए डिनोट होता है। और ये माइक्रोवेव टेक्नोलॉजीज, माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे काम करता है। हम देख सकते हैं हमारे जो राइट साइड में इमेज है कि 2 बिट का इमेज, 4 बिट का इमेज और 8 बिट का इमेज में क्या फर्क है। जितना हमारा लोअर बिट होगा उतना हमारा हाई रिजोल्यूशन होगा। इमेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग बेसिकली हमने जैसे देखा कि जैसे हमारा सैटेलाइट डेटा है उसको इतनी बाधाएं आती है, जैसे अगर कोई भी उसको अगर डेटा एक्वायर करना है तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में ये चीज नहीं रहती कि हमें इमेज अगर आ गया तो उसको प्री प्रोसेस करना पड़ेगा प्रोसेसिंग से पहले। अलग अलग करेक्शन रहते हैं, रेडियोमेट्रिक करेक्शन रहता है, जियोमेट्रिक करेक्शन रहता है। रेडियोमेट्रिक करेक्शन हम समझेंगे। जियोमेट्रिक करेक्शन मतलब अगर हम किसी भी चीज का पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर इमेज नहीं ले पाए तो उसका पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। रेडियोमेट्रिक करेक्शन मतलब जो भी एटमॉस्फेरिक अडल्ट्रेशन से हमारा अडल्ट हो चुका है डेटा, तो उसको भी थोड़ा प्री प्रोसेस करके सही करना पड़ेगा। तो बेसिकली सैटेलाइट डेटा अगर हमें काम करना है तो प्रोसेसिंग से पहले प्री प्रोसेसिंग में टाइम ज्यादा जाता है, जो कि ड्रोन डेटा में वो केस नहीं रहता है। ड्रोन डेटा हम डायरेक्टली जो कुछ भी प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हम लगा सकते हैं। इमेज एनहांसमेंट की बात हो गई। विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, मतलब अगर हम सैटेलाइट डेटा की बात करें तो वो हमें बेसिकली आरजीबी, मतलब जो हमें कलर इमेजेस है वो फ्रिक्वेंटली नहीं दे सकता है। तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस होती है, तो फिर हमें डिटेक्शन भी करना पड़ता है। तो डिटेक्शन हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर या टोन देख के करना पड़ेगा प्राइमरी स्टेज पे। फिर उसका सेज, साइज, टेक्सचर, अगर मान लो कि हम बहुत बड़े एरिया का देख रहे हैं तो वाटर बॉडी का हमें साइज के हिसाब से उसका डिटरमिन करना पड़ेगा कि हाँ ये वाटर बॉडी हो गया। उसका टेक्सचर के हिसाब से हमें उसको असाइन करना पड़ेगा कि हाँ ये बिल्डिंग है। फिर अलग अलग हाइट और शैडो के हिसाब से साइट और उसके अलग अलग जो एसोसिएशन होंगे उसके हिसाब से विजुअल इंस्पेक्शन होता है। एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, मतलब हम ड्रोन डेटा या सैटेलाइट डेटा का एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि आज, जैसे हमने पहले भी बात किया कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वामित्व योजना के साथ आगे बढ़ रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ। क्योंकि गांव में कैसे होता था कि पहले किसी भी फार्मर को पता नहीं है कि मेरे लैंड का बॉर्डर क्या है, तो उसका पूरा ड्रोन टेक्नोलॉजी से आज मैपिंग हो रहा है कि किस फार्मर का कितना लैंड है, उसका पूरा डिजिटल दस्तावेज बन रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी भी उसमें, ड्रोन लैब टेक्नोलॉजी भी उसमें काम कर रहे हैं। अर्बन एक्सपांसन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि हमने बात किया कि माइनिंग टेक्नोलॉजी, माइनिंग इंडस्ट्री में भी ड्रोन का काफी अच्छे से उपयोग हो रहा है। मान लो कि कोई भी बहुत बड़ी माइनिंग इंडस्ट्री है, वो अपने पूरे महीने में या 15 दिन में कितना रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना स्टॉक पाइल बना रहे हैं, तो पूरा जो भी मैपिंग है वो आज रिमोट सेंसिंग मतलब ड्रोन टेक्नोलॉजी से हो रहा है। एग्रीकल्चर की बात कर दी हमने, तो एग्रीकल्चर में ड्रोन में कोई भी मल्टी स्पेक्ट्रल लेंस लगा करके हम आज देख सकते हैं कि हर 15 दिन में क्रॉप का हेल्थ कितना हो रहा है। आज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात कर रहे हैं कि किसान की जो इनकम है उसको डबल करना है, तो उसके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज बहुत अच्छे से हो रहा है और आगे भी बहुत स्कोप है इसमें करने का। मैपिंग ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंडीशंस, हम देखते हैं कि अलग अलग सीजन में सॉइल में मॉइस्चर कितना है, तो कितना पानी हमें देना है खेत में, वो सभी मैपिंग ड्रोन के उपयोग से हो सकता है। फॉरेस्ट्री, आज हम देखते हैं कि पोटेंशियल फॉरेस्ट फायर्स, मतलब सेंट्रल इंडिया या वेस्टर्न इंडिया में तो नहीं मगर साउथ में कितनी बार हमने देखा है कि फॉरेस्ट फायर बहुत पहले ही डिटेक्ट हो जाता है और उस पर काम हो जाता है। आज इंडिया में तो ये बहुत कम मात्रा में है, मगर यूएस में जहाँ हम देखते हैं कि फॉरेस्ट फायर आए दिन होता रहता है, तो बहुत अच्छे से उसको मॉनिटर कर पा रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी से। फिर जैसे डिफॉरेस्टेशन को हम कवर कर सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन किस रेट से हो रहा है। उसी तरह अगर हमें कोई फॉरेस्ट डेवलप करना है, मतलब डिफॉरेस्टेशन करना है, तो अच्छा एक पर्टिकुलर इंटरवल्स पे हम पूरा मैपिंग करेंगे और देखेंगे कि हमारा फॉरेस्ट किस रेट से आगे बढ़ रहा है। अर्बन ग्रोथ स्टडीज, मतलब
हर 3 साल या 5 साल में अर्बन मतलब कोई भी सिटी का एरिया कितना घटा या कितना बढ़ा, वो हम इस टेक्नोलॉजी से देख सकते हैं। फ्लड प्लेन मैपिंग, आज हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र में हर मॉनसून में फ्लड आ जाता है, और कितने सारे इंडिया के ऐसे रीजन है कि जहाँ पे आज भी फ्लडिंग का बहुत बड़ा दिक्कत है। तो पूरा फ्लड का मैपिंग, माने अगर पानी आया तो उसका डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो ड्रोन टेक्नोलॉजी से डेवलप होता है, उससे पता चलता है कि अगर कोई चीज हाई अल्टीट्यूड पे कौन सा रीजन है, लो अल्टीट्यूड पे कौन सा रीजन है, तो उसमें कटिंग फिलिंग से उसको सीधा करना है तो वो कैसे करेंगे, उसका कंटूर्स डेवलप होते हैं। तो हमें पता चलेगा कि वाटर का फ्लो किस तरीके से रहेगा, ताकि फ्लड मैपिंग में वो बहुत अच्छे से काम हो सकता है उसमें। डिजास्टर मैनेजमेंट, आज हम देखा कि जैसे लॉकडाउन की बात हो गई 2020 कोविड में, कि उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का इवन लोकल कॉरपोरेशंस हो या फिर स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट हो, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया उन लोग ने, लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन में कैसे यूज हो गया। वैसे ही जैसे हमारे आफ्टर अर्थक्वेक हो या फिर आफ्टर फ्लड हो, तो उसमें नॉर्मल कोई हम जा करके देख नहीं सकते कि व्हाट इज द सिचुएशन देयर। तो उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी कहीं भी फ्लाई करके देख सकता है कि व्हाट इज द सिचुएशन, कहाँ रिलीफ देना है, कहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काफी अच्छे से आज काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ वेबिनार एंड करते हैं। अगर क्वेश्चन है तो हम कर सकते हैं। Thank you so much. Hi, Mr. Nihariwala. My name is Aditya Prajapati, and I am also associated with Drone Lab Technology as DGC certified instructor. Good morning once again. Hello, can you hear me? Yes, sir. Go ahead. Yeah, okay. Sorry, I joined a bit late, and due to some remote place signaling issue, and I could not continue continuously. But overall, it was well informative. I really enjoyed the entire your presentation. Okay. On behalf of audience, I would like to raise a couple of queries. बेसिकली आपने डोमेन के बारे में बताया विच इज क्वाइट गुड, बट आई थिंक कि जो इसमें स्टूडेंट कम्युनिटी है शायद उनको इसमें एक इंटरेस्ट होगा कि आज के डेट में अगर हम बात करें इमीडिएट ओपनिंग्स कहाँ पे है रिमोट सेंसिंग में इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, और उसके लिए क्वालिफिकेशंस या स्किल सेट्स क्या हो सकते हैं। तो आई थिंक अगर इफ यू कुड थ्रो लाइट ऑन ऑल आई मीन दीज टू एस्पेक्ट, दिस विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर द ऑडियंस। Yes, definitely, sir. So, like, remote sensing is not limited to any one field of education today. Whether you are civil engineer, whether you are electronics engineer, whether you are like coming from the IT background, that is CAC background, a lot of work can be done in remote sensing technology. Like, if you are civil engineer, you can work with the structural inspection, you can work in the town planning department, you can work for the town planning department, you can work for the planning and execution of the projects, you can work for the construction project monitoring. The huge like project that is infrastructure projects are going in the India today. A lot of monitoring are done by drone technology. If we go for the IT sector, a lot of this remote sensing data that is acquired by the satellite, a lot of processing is done by the coding, because the processing is taking a lot of time today. The satellite data, so all these are done by coding in the Python, coding in the R language. So it's if you are coming from this mechanical, you can work for the drone manufacturing, the aeronautics. It's quite wide open for all the branches. Right. Yeah, thank you. One more thing, I mean, coaching ceremony, but at the same time, okay, I may add over here, okay, fine. Even after the webinar, okay, if there is any query from anyone, okay, they have the opportunity and they will provide you the windows to approach us for any specific query. Some of us from Drone Lab Technology side or on behalf of the expert, okay, we would be delighted to answer your queries. Thank you. Okay. Thank you so much, Rivji.
थैंक यू वेरी मच। आपने जो भी समझाया, आपने जो भी टॉपिक्स थे वो काफी ज्यादा अच्छा था और आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप हम लोग एवरी सैटरडे को ऐसे ही मिलेंगे सब। और हम लोग एवरी सैटरडे को कंडक्ट करने वाले वेबिनार फ्रॉम 11 to 12 सेम टाइम रहेगा। सो आई विश ऑल जो भी यहाँ पे है वो एवरी सैटरडे को हम लोग फिर से मिलेंगे सब। सो yes, thank you so much and yes, we can end this webinar here and thank you so much Riv Neriwala again for giving this presentation and yes, thank you. We can leave now. Thank you so much. Thank you all from my side as well. Thank you very much. Thank you, Mr. Nehariwala, especially. Thank you. Thanks, Chintan. एंड Thank you, Stephanie. ऐप भी डाउनलोड हो जाए, ड्रोन लैब की ऐप भी डाउनलोड कर दे, हम लोग लिंक भेज देंगे। सो ड्रोन लैब की ऐप भी है, सो हम लोग डाउनलोड करेंगे वो। And offers from our side for your benefit. यस, And इट इज अवेलेबल ऑन गूगल स्टोर, इट इज अवेलेबल ऑन गूगल स्टोर एंड ऐप स्टोर, दोनों में अवेलेबल है। सो आप लोग सब चेक कर सकते हैं। सो उस हिसाब से अच्छा रहेगा। And also your feedback are also welcome. This will help us in improving our content or delivery. So please feel free to provide whatever feedback or input you have in your mind. Saturday को at 11 with new mentors and new topics. So thank you so much.